Okay. Good morning. Let us start. Okay. Good morning. सभी से अनुरोध है कृपया अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाएं. Let us join both palms together. Let's take a deep breath in. We'll start with the prayer. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योगारूतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ॐ Let us rub both palms together, placing them over the eyes. We will slowly open. Namaste, Suprabhatam. A very good morning to each and everyone present here. Dear all, let us understand that yoga is so powerful to be done in the early morning time. I really appreciate everybody who commits to join in live, because that is what the respect that you are giving to me as a teacher, as an orator who comes up everyday life despite any of the hurdles which might be at the backstage. So with that said, let us start. दोस्तों, जैसे हमारे योग में ना एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले बिंदु जयोग्नि दीपनम एतयोः हठ सिद्धि लक्षणम. तो ये हमारे हठ सिद्धि के लक्षण ही है जो डिफाइन करते हैं कि यह योगी मनुष्य है, जिसमें हमारे अंदर भले whatever may be the age, but we should have that tartari, that energy to come up for the life, for any of the activity which is good for our health. When we commit to health, health also becomes 10x multiplied, the best version that we can look out for. जैसे बहुत ही सुंदर सा जिक्र हमारे पहले के बड़े दिग्गजों ने शायद लिखे गए होंगे, that when we work or when we support the universe, universe supports us. So let us all
unite together as a community with the thought Sangachadvam Samvadatvam Samvo Manam se janata Deva Bhagam Yatha Purvet Sanjananam Upasate. संगच्छध्वम संवदत्वम, सभी साथ मिलके सभी के हेल्थ एंड वेलबींग की कमिटमेंट रखते हुए आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। जैसे मेंशन आता है संडे सूर्य, रविवार, तो सूर्य की उपासना बहुत जरूरी है और हम अपने शरीर के अभ्यास, शारीरिक अभ्यास के माध्यम से, मानसिक अभ्यास के माध्यम से उपासना करते हैं, जिससे कि वो सूर्य स्तवन हमारे अंदर, सूर्य की किरणें हमारे अंदर इम्बाइब हो, सूर्य जैसा तेज हमारे अंदर विकसित हो. So I would request everybody to get onto the mat. We are going to begin with the session. Since there is a small error in my earphone, currently I'll be giving you the instructions so as to not disturb myself from conveying you the instructions better. Hence requesting कि आप सभी खड़े हो जाएंगे और मैं आपको instructions दूंगी जिससे कि आप उस अभ्यास को अच्छे से करें. Positions भी बताऊंगी जिससे कि आप उन सभी अभ्यासों को अच्छे से समझें. But before that, let's have a प्रार्थना. संगीता जी, अगर वीकनेस है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं. फर्स्टली हम वार्म अप से शुरुआत करेंगे, तो वार्म अप का अभ्यास भी आप कर सकते हो. ओके, एंड देन यू कैन maybe rest for a while and then see if it's as per your convenience. You can then proceed for the practice. For now, let us join both palms together. सभी अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए शुरुआत करते हैं वंदना से. ओम. अपनी आंखों के समक्ष सूर्य की किरणों को धारण करें. Let us allow our eyes to be closed but visualizing that sunshine in front of our eyes. Let us allow the orange color sun to be seen in front of the eyes, doing that dawn, coming out from the dark night and turning into a beautiful morning. Om Dhyeyah Sada Savitramandala Madhyavartini Narayana Sarasaja Sarasannivrishtah Keyurava Makarakundalavanu Hari Hiranyamayabafu Vritashankha Chakrahar. Om मित्राय नमः. एकम. दोनों हाथों को बाजुओं से ले जाइए दोस्तों. Let us allow both the hands to be brought by the sides and allow your elbows to join together. आप सभी ने खड़े होके ही करना है. मैं आपको दिखाने के लिए नजदीक आई हूँ. And place them at the heart center. Yes. When I say dve, in the second position, you have to allow both the hands to be brought by ears. अपने दोनों हथेलियों की भुजा का भाग कान से नजदीक रखते हुए श्वास गहरा भरे. And let us have a sequential bending. Firstly at the thoracic, then at the lumbar, and then finally the lower area, the sacral area. So thoracic, lumbar and sacral में exhalation के बाद पीछे जाए. जैसे मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था, एक्सलेशन जब आप हाइपर एक्सलेशन करें या फिर हाइपर एक्सटेंशन करें तब एक्सहेल करके होल्ड करना. आफ्टर विच कम बैक, इनहेल अ बिट. अगर हाइपर एक्सटेंशन किया हुआ तो जब हम वापस आएंगे न्यूट्रल पोजिशन में, जब आए श्वास भरे और पूरा एक्सहेलेशन के साथ त्रिणी, थर्ड पोजिशन में पादहस्तासन. Right? Padhastasana, where we completely surrender down. Now, in this surrender down position, would like to make a small correction. जैसे बहुत बार हमारे जो हाथ है ना, वो सिर के ऊपर रखते, हम कुछ चीजों का ध्यान नहीं देते हैं जाने अनजाने में. As I said before, the first position is where we allow both the hands to be brought about. Then breathing by the heart center. श्वास करते हुए दोनों हाथों को कान से नजदीक करते हुए पीछे जाएं. And then as we allow our position to go down, we have to ensure that we keep our elbows in line with the ear. Okay?
पोजीशन पूरा एक्सलेशन के द्वारा इसी मोड में या पूरा एक्सलेशन आफ्टर विच अगर लगता हो कि अपने घुटने बेंड हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल सीधा घुटने मोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया है L4 L5 केस में आप बिल्कुल यहाँ पे रह सकते हैं एंड आल्सो मेक श्योर दैट वी एक्सटेंड फर्दर। पूरा पहले एलोकेट करने के बाद इस मोड में रहें। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत होके इस मोड में रह सकते हैं। चारों तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर भी रखें, घुटनों पर रखें। जिनको भी L5 S1 और L4 L5 में दिक्कत है, but do not skip the practice where we allow our movement to be initiating the blood circulation. In the third position, S and trial, we have to hold. After which fourth position में जैसे mention है अश्व संचालन, तो जैसे रेडी स्टेडी गो का मूव होता है ना, पीछे वाला सीधा सामने, focusing in front, we have to hold the position. Exhale while keeping both the hands on the ground, both the hands on the ground. Let us allow position hold such that our नेहा आगे वाली स्टेप में जी क्या हुआ? सॉरी नेहा मैम आगे वाले स्टेप में जो पैर हम आगे रखेंगे उसमें पीछे वाला पैर नीचे जमीन को घुटना टच करेगा? दो है, या तो आप घुटना नीचे रखो, या तो घुटना नीचे रखो या फिर स्ट्रेट रखो। घुटना नीचे रखने का फायदा ये है कि आप घुटने पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं ला रहे। घुटना सीधा रखने का मेन फायदा यही होता है कि हम अपने हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से हमारी भुजाएं पुष्ट बने। तो जो अगर आप चाहते हो कि आप अपने घुटनों को और ज्यादा स्ट्रेंथन करो तो कर सकते हैं। अगर एक्टिव इंजरी है तो आप उनको रिलैक्स छोड़ना, वेयर द थाइज। सिमिलरली this abhyas of keeping the knee straight also helps us in keeping our position more alert, where we allow the back also to be taking up the load. जैसे जब हमने होल्ड किया कहीं ना कहीं हमारा active calm, you will experience that there's some active load bearing situation which is building up here. तो कुछ तो ऐसे some might experience vibratory effect हो रहा है, vibration, right exactly. तो वो vibration होने दीजिए, it is nothing but improving our muscle tonicity. तो इसलिए घुटना सीधा। थैंक यू मैम, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, थैंक यू। फोर्थ पोजीशन के बाद जब फिफ्थ पोजीशन आएगा, we have to ensure that our ears are in line with the arm. Our ears are in line with the arm, where we allow our hips to be lifted up, navel to be pulled in, both the soles to be on the ground, and also both the knees are tightened up. जैसे मैंने मेंशन किया था, हमारे घुटनों में बेंट नहीं होगा, they have to be very straight. ओके जैसे प्रीवियसली भी कहा है, L4 L5 के सिचुएशन भी में आप इजी बने, जैसे यहाँ पे ज्यादा खिंचाव अपनी क्षमता अनुसार, यू नो बेटर देन मी बिकॉज इट्स योर बॉडी, सो बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। अगर हम अपने ध्यान को इन जगहों पर केंद्रित करें तो यहाँ पे खिंचाव आएगा, तो आराम से कर सकते हैं, हमारे को कीजिएगा, because somehow we have to excel from a current situation. Hold. After which दोनों घुटने पहले जमीन पर आएंगे, छाती जमीन पर आएगी, पैरों के पंजे जमीन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 शरीर के जमीन पर होगी, छाती और ठुड्डी, और दोनों एल्बोज अपने टांग के नजदीक, अंडरआर्म्स
like contracted. Navel is sucking, hold. श्वास करते हुए we have to glide forward and look upward with the thought that we are keeping our both of the elbows straight, नजर ऊपर, ध्यान ऊपर. Exhale. Parvatasana. Again, Parvatasana. Hold. Let me see. Back to Ashvishanchalan. Padhastasana. Knee straight. Yes. Knee straight, Madhvi ji. घुटने सीधे और श्वास भरे हस्तोत्तानासन. एंड नमस्कार स्थिति. ओके. फिर से एक बार गहरा सांस भरेंगे. ओम रवये नमः. एकम, दोनों हाथों को बाजुओं से. द्वे, त्रीणि, जैसे मैंने मेंशन किया था जितेंद्र जी, अपने जो साइड पार्ट्स है ना वो बिल्कुल कान के नजदीक रखते हुए साथ साथ में नीचे जाएंगे. ओके. हाथ पहले नीचे नहीं जाए, साथ साथ में. चतवारी, फोर्थ पोजीशन. घुटना सीधा मंजू जी इफ पॉसिबल. पंच, फिफ्थ पोजीशन. अनुपमा जी पर पांचवा पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन में पर्वतासन रहता है. Fifth position is Parvatasana. What is Parvatasana, Rastogi ji? Parvatasana is triangle, like a mountain. इसी को अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं. Jitendra ji, push your shoulders down. It has to be a proper triangle, like squeeze the shoulders to push it down so that our navel is pulled in and we have completely exhaled. So इस अभ्यास के दौरान अपने दोनों हाथ और पैर बिल्कुल स्ट्रेट ट्रायंगल मोड में रहेंगे. बहुत सुंदर. षड, सिक्स्थ पोजीशन. यस, बहुत सुंदर. ओके. सप्त, सेवेंथ पोजीशन. श्वास भरे 8. अष्ट, एट्थ पोजीशन. नव, नाइन्थ पोजीशन. घुटना सीधा. वंदना जी, कीप द नी स्ट्रेट. नाइन्थ पोजीशन. दश, टेंथ पोजीशन. एकादश, 11th पोजीशन. द्वादश. ओम सूर्याय नमः. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड,
सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम भानवे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, एक्सहेल डाउन। थर्ड पोजीशन शोभा जी, तीसरे पोजीशन में क्या रहता है? यस, चत्वारी पादहस्तासन, सॉरी व्हाट इज इट, क्या पादहस्तासन? पंच, फिफ्थ पोजीशन पर्वतासन। अशोक जी आप प्राणायाम कर सकते हैं ना, कीप द स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद करें। जब जब भी एक एक नंबर आएगा, मे बी यू कैन ब्रीथ नाइसली थरली, एक्सहेल नाइसली थरली। षड, सिक्स्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 11th 10th पोजीशन, दश, एकादश, द्वादश। ओम खगाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम खगाय नमः। सांस भरे गहरा। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश।
एकादश, द्वादश, ॐ पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, ॐ आपको भी मेरे साथ चांट करना है। When we chant, the process of breathing in, with the process of breathing in and then chanting, exhalation थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, जैसे straw बना लिया हो मुंह का और then you are slowly exhaling ओम के माध्यम से पूरा एक्सलेशन हो, फिर श्वास भरे एंड देन एकम, द्वे, हिरण्यगर्भाय हो गया है, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। दोस्तों, लयबद्ध रूप से जब हम सूर्य नमस्कार का स्तवन करते हुए योगाभ्यास कर रहे होते हैं, they are actually invigorating several important endocrine glands in our body. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अंतस्त्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं, जिनका मूल कार्य है हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्त्राव करना, फिर वो चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा हो, पीनियल ग्लैंड से हो रहा हो, आवर थाइमस ग्लैंड से हो रहा हो, पैंक्रियास से हो रहा हो, थायराइड ग्लैंड से हो रहा हो, एड्रिनल्स से हो रहा हो, या whatever any other part. We have to ensure that the several specific psychic centers are also invigorated. So let's just do it together. श्वास भरे गहरा, ओम मरीचये नमः। एकम, श्वास भरे और अपने बंद आंखों से सबसे पहले ध्यान करेंगे अपने आज्य चक्र पर, that is at the eyebrow center point. द्वे, श्वास भरे गहरा और गहरे श्वसन के माध्यम से अपनी पीठ को आर्च करते हुए होल्ड करेंगे कुछ देर, हस्तोत्तानासन। Let us hold here for a while and let us visualize the Sahasrara chakra that is at the top of the head. ओके, अपने ध्यान को उस सहस्रार चक्र पर केंद्रित करें। सहस्र पंखुड़ियों से लदा हुआ यह कमल पुष्पधारी सहस्रार चक्र के दो रंग है, एक तो हो गया पर्पल कलर और एक हो गया व्हाइट कलर और शुभ्र कलर जिसको हम कहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक रंग को मन ही मन अपनी आंखों में विजुअलाइज करते हुए उस जगह पर ध्यान दे कुछ समय और वापस आइएगा श्वास भरते हुए एंड देन कंप्लीटली एक्सहेल टू गो डाउन इन पाद हस्तासन, जहां पे हम अपने नाभि से नीचे पेड़ों की जगह पर द ग्रोइन एरिया पर ध्यान देंगे, मूलाधार चक्र। ओके, लेट अस विजुअलाइज आवर एनल एरिया।
to be focused upon. इस मूलाधार चक्र को हमें लाल रंगी कलर से विजुअलाइज करना है। 4 पंखुड़ियों से लदा हुआ यह मूलाधार चक्र लाल रंग से लदा हुआ है। यह अनुभव करें। Hold the position for a while. पादहस्तासन। Hold. श्वास भरे गहरा और अश्व संचालन। अश्व संचालन 4th पोजीशन, चौथा क्रमांक क्रिया, जिसमें हमारे ध्यान को हम सबसे मूल यूरिनरी सिस्टम के केंद्र स्थानी, दैट इज द सैक्रल एरिया, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। आंखें बंद रहेंगी बट मन ही मन एक पर्यवेक्षक की तरह, like an observer, let us try to look at that point where we are allowing our focus to be brought at that area to be focused upon. Let us ensure that our सहस्रार चक्र, आज्या चक्र, मूलाधार चक्र के साथ साथ अब हम स्वाधिष्ठान चक्र को भी यूटिलाइज, स्टिमुलेट कर रहे हैं। इस स्वाधिष्ठान चक्र को गेरुए रंग से विजुअलाइज करें। गेरुआ रंग माने ऑरेंज कलर। इसका तत्व है जल तत्व। एक्सहेल के साथ, एक्सलेशन के साथ पर्वतासन में जाएंगे। पर्वतासन में अपनी नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए अपनी दोनों पैरों के साथ साथ दोनों हाथ भी अच्छे से स्ट्रेच करके होल्ड करें कुछ समय। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Fine. After which is a hold kare. Please hold the position for a while. Let us visualize our Manipur chakra. नाभि के मध्य भागी, जैसे कहते हैं ना मृग नयनी, मोर या फिर मृग के नाभि में होता है कस्तूरी और वो जगह जगह ढूंढता है उस सुगंध के स्वरूप, जगह जगह उसे ढूंढता है, बट वह सुगंध उसके नाभि में ही स्थित है, वह उसकी कस्तूरी सी के अंदर है। Let us also visualize our अग्नि, समान वायु का केंद्र स्थान at our नाभि center, focusing at that navel point. Let us hold the position for a while where we are allowing our position to be in the process of a triangle. Hold. I can see प्रीति जी बहुत सुंदर कर रही है। Let me spotlight her for a while. प्रीति, बाकी भी बहुत सही कर रहे हैं, but फिर भी I can. बिल्कुल, बहुत बहुत सभी सही कर रहे हैं। Let me just say a few words like प्रतिभा जी भी ठीक है, माधवी जी बहुत अच्छे, बंसारी जी बहुत सुंदर, लक्ष्मी जी बहुत अच्छे, शकुंतला जी, पूर्वी जी थोड़ा सा और हो सकता है ना, आई फील सो, थोड़ा सा और स्ट्रेट करो। नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल, यस, पुश द शोल्डर्स डाउन, दैट्स इट। सपना जी बहुत अच्छे, छुट्टी ली थी आपने 4-5 दिनों की, या 1 वीक की हो गई शायद ना, 1 या 2 वीक की। मंजू जी और थोड़ा सा शोल्डर्स नीचे कर सकते हो आप। लीना जी ठीक है, जितेंद्र जी अच्छा है भाई, पूजा जी ठीक है, मुक्ता जी स्ट्रेट एंड, यस, कीप द नी स्ट्रेट। अगर लगता है कि पैर दर्द कर रहे, देन स्टार्ट डूइंग पेडलिंग। पेडलिंग करना स्टार्ट कीजिए, पेडलिंग, पीछे वाले पैरों में पेडलिंग करे। बहुत सुंदर वंदना जी इज लाइक, उनका ये आसन सिद्ध हो गया हो मानो, बहुत सुंदर। ज्योत्सना जी करिए, बहुत अच्छे। स्वाति जी
संगीता जी अपनी क्षमता अनुसार पानी भी पी लिया कीजिए। संदेश जी करिए करिए, देखो मत करिए संदेश जी, दुप्पा लगले फाट दुप्पा लगली नानी कर कर अच्छा कर उदक पी आणि परत करपा लागणार आहे। रश्मी जी बहुत अच्छी, रश्मी मैम करिए करिए होल्ड। शिल्पा जी, देन पवित्रा जी, शोभा मैम, शोभा जी करिए, मीरा जी बहुत अच्छे, कल्पना जी बहुत सुंदर, अप्रतिम। फाइन। सो इन दिस पोजिशन डियर मेंबर्स, जो हम कहते हैं ना जठराग्नि प्रदीप्त करने का जिक्र जो हमने शुरुआत के श्लोक में मेंशन किया था, वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले बिंदु जयोग्नि दीपनम एतयोः हट सिद्ध लक्षणम। तो ये बिंदु है, ये जो बिंदु के ऊपर जय प्राप्त करना है या फिर वट एवर मे बी आवर गोल, समान वायु के बिना असंभव है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव आवर जठराग्नि इन अ वेरी गुड कंडीशन, बिकॉज अगर अपनी जठराग्नि स्ट्रांग होगी, जो खाएंगे वो पचेगा, जो पचेगा जैसे पचेगा अपने शरीर को बनने में सहकार्य पूरा दे पाएगा, क्योंकि हमारे जो सप्त धातु है 7 tissues of our body are nothing but an outcome of the food that we take. Fine. Now from here उसके बाद क्या करते हैं, दोनों घुटने छाती ठुड्डी जमीन पर रखते हुए षष्टांग अष्टांग नमस्कार होल्ड। इस अभ्यास में अपने ध्यान को हम कहां पर केंद्रित करेंगे? लेट अस फोकस इट एट द हार्ट सेंटर पॉइंट। जैसे मेंशन आता है, इस अभ्यास में हम अपनी छाती जमीन पर रखते हैं, तो अपनी छाती जमीन पर जो रखे हुए है उस जगह पर एक बहुत ही सुंदर सा थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड है। इस थाइमस ग्लैंड का कार्य है अपने शरीर में टी लिम्फोसाइट्स का जनरेशन करना, साथ साथ ही इसका कनेक्शन हमारे अंदर इम्यून सेल्स को जनरेट करने पर भी अवलंबित रहता है। इट हैज इट्स ओन रोल इन नरिशिंग आवर बॉडी with good T lymphocytes. T stands for thymus, and that is how lymphocytes are being, white blood cells are being generated over here. Now from here श्वास भरेंगे और अनाहत चक्र के बाद आर्च करें। छोटा सा पॉइंट मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब हम कहते हैं ना अनाहत, हमें अच्छे मूड में रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर इन द गुड मूड, we are actually keeping our thymus gland in good mood. थाइमस ग्लैंड जो कि अपनी हार्ट सेंटर पर नजदीक है, जब हम अपने हृदय पूर्वक किसी को भी प्यार देते हैं या फिर प्यार पाते हैं, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ता है हमारी अंदर की इस थाइमस ग्लैंड पर, और जिसके कारण कहते हैं कि हमारे अंदर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम खुश रहते हैं, जब हम मजे से रहते हैं, सर्दी जुकाम नहीं होता है, बट जो ही हम टायर्ड रहे ज्यादा या फिर स्ट्रेस लेने लगे, वी आर बिकमिंग मोर प्रोन टू द कफ कोल्ड सिम्टम्स or the fever symptoms. Hence it is important to become a child of God where we cherish every moment. Now from here arch the spine and hold the position भुजंगासना if you haven't done it yet. भुजंगासन में अपने ध्यान को हम अपनी थायराइड ग्लैंड पर केंद्रित करें। थायराइड ग्लैंड वह ग्रंथि है जिसका कार्य हमारे चयापचय पर होता है। It has its own correlation on the metabolism. So when we talk about stimulating this part, it has its own role in controlling our other growth hormones, and at the same time it has its own correlation in controlling our heat cold exposure and at the same time our metabolism. तो अगर जिनको भी complaints रहते हैं, मोटापा बहुत अनकंट्रोलेबल है या फिर वीकनेस होती है शरीर में, पतलेपन की शिकायत है, then it is somehow an outcome of weak thyroid gland because it has its own correlation with the metabolism. Fine. Let us hold the position while stimulating this part.
stretching this area. And now from here, let us go for the next abhyas. इस गर्दन के भाग में विशुद्धि चक्र होता है. Okay, so the psychic center is विशुद्धि चक्र. From here again, let us go for Parvatasana. नाभि पर ध्यान केंद्रित. So we have to focus and visualize the luminous light. जैसे आग का कलर होता है, उससे थोड़ा सा लाइटर वर्जन विजुअलाइज करना है. येलो कलर्ड लाइट टू बी फोकस. जैसे सूर्य की किरणें जब हमें दिखती है तो वो येलोइश शाइनी ब्रिजल्स कलर रहता है, वैसा ही अनुभव इस जगह पर पर्वतासन में करना है अनुभव. आफ्टर विच वी हैव टू गो फॉर अश्व संचालन. From Ashwa Sanchalan, Padhastasan. From Padhastasan, श्वास भरे हस्तोत्तानासन and नमस्कार स्थिति. Okay, नमस्कार स्थिति. That is the प्रणाम नमस्कार स्थिति. Fine. फिर से एक बार करेंगे दोस्तों. Let us now do it with the flow, with the rhythm, and with the attention being given to each and every specific part that we will invoke. Om आदित्याय नमः. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि. स्पीड थोड़ी बढ़ा रही हूं मैं. हाँ अभी. पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश. साथ साथ में करना. ओके. द्वादश. ओम सवित्रे नमः. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश. ओम अर्काय नमः. एकम नमस्कार स्थिति. यस. द्वे सेकंड पोजीशन. त्रीणि एक्सहेल डाउन. चत्वारि श्वास प्रश्वास के साथ करोगे तो थकावट नहीं होगी, आप आराम से कर पाएंगे. ओके. सो आई कैन सी एवरीबॉडी इन द चत्वारि पोजीशन. पंच फिफ्थ पोजीशन. Exhale completely.
षड सिक्स्थ पोजीशन। कितनी अच्छी बात है, देखो रविवार के दिन भी आप सुबह योगाभ्यास करने के लिए सवेरे सवेरे उठ के आए हैं। That's a blessing indeed for me as well in turn. So षड सप्त भुजंगासना। श्वास भरे। जिस प्रकार से सूर्य एक दिन भी छुट्टी नहीं करता, वैसे ही हमें योग में भी एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अष्ट, when we are committed, we can definitely पीठ ठोक के कह सकते हैं कि जब मैंने मेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली थी तब मुझे रोग क्यों हुआ, बट उससे पहले जरूरी है कि हम पहले उतना समय दे योगाभ्यास में, तभी हम उस हक के साथ कह सकते हैं। हालांकि कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं जिसके कारण फिर वो रोग पनपता है जाने अनजाने में, but whatever it is, when we have the control over the response, we can be rest assured that we can live a happy life. From the Parvatasana, next position, Ashwashanchalan. पादहस्तासन। यस संगीता जी, आप प्राणायाम कर लीजिएगा, है ना। okay. श्वास भरे गहरा एंड नमस्ते स्थिति, नमस्कार स्थिति। Om Bhaskaraya Namaha. This is the 12th pose, after which we are having a small break of breathing in. So please do not skip. Let us continue with the flow to improve our capacity to go for the 60 round. Dve, Trini, Chatvari, Pancha, Shada, Sapta, Ashta, Parvatasan, 8, Ashta position, okay. Nava, 9th position, बहुत सुंदर। दश, एकादश, 10th position रश्मि जी। एकादश, अब 11th position and द्वादश, बहुत सुंदर। A big clap from my end. You know, अब सभी अपनी पीठ को ऐसे थपथपाइए, you know, be happy for yourself. Yes, ऐसे। हम स्कूल में थे ना, तो कोई भी अच्छा काम करे तो हमारे सर हमें ऐसे करने के लिए कहते, pat your back. Yes. So let us go for next round. Are you all ready? Second round पे जाएंगे? Yes. Give me a thumbs up. एक thumbs या दो thumb? दोनों, right? Fine. Let's go for a next round. Om Mitraya Namaha. Ekam. Dve, second position. Trini, third position. Chatvari, fourth position. Pancha, fifth position. Shada, sixth position. Sapta, seventh position. Ashta, eighth position. Nava, ninth position. Dasha, 10th position. Ekadasha, 11th position. Dwadasha and 12th, right? Mitra Ravi, Om Ravaye Namaha. Ekam. Dve. Trini. पहले नीचे आ गए माधवी जी। Yes. Chatvari, fourth position. Pancha. पानी पी सकते हैं अगर आप चाहो तो, पर ठीक है। Shada, sixth position.
सप्त 7th position, अष्ट 8th position, नव 9th position, दश 10th position, एकादश द्वादश, ओम रवि हो गया ना, सूर्याय करते हैं ना मित्र, रवि रवि, ओम रवये नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओके, ओम सूर्याय नमः। एकम। अब जिनको मानो थकावट हो रही हो, प्लीज टेक अ ब्रेक इफ यू विश टू, अदरवाइज डू नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल्सो। हाँ, तो अगर पहले आपने कर लिए थे 30, पहले 30 तक गए थे इससे पहले, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप 30 तक तो जा ही जाएंगे। अभी द्वे, द्वे 2nd पोजिशन, त्रीणी 3rd पोजिशन, 4th पोजिशन, चत्वारि, पंच, षड 6th पोजिशन, सप्त, अष्ट पर्वतासन, नव 9th पोजिशन, दश, एकादश, द्वादश। मुक्ता जी क्यों कर रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? सूर्य नमस्कार क्यों नहीं? ब्रेथलेसनेस? ऐसा ब्रेथलेसनेस हो गया था, थकान हो गई थी। प्राणायाम करो ना, ये क्यों कर रहे हो? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छा। शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। ओके। सो मित्र रवि सूर्य, ओम भानवे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, क्लोज योर आईज एंड डू। मुक्ता जी आंखें बंद करके करिए। चत्वारि, पंच, षड 6th पोजिशन, सप्त, अष्ट, यस वेरी नाइस अंकिता, नव 9th पोजिशन, दश 10th पोजिशन, एकादश 11th पोजिशन, द्वादश। ओके, ओम भानवे नमः। एकम, मित्र रवि सूर्य हो गया, भानु भी हो गया, शायद खगाय रह गया है ना। ओम खगाय नमः। एकम, फिर से एक बार, यस। द्वे 2nd पोजिशन, आर्च द स्पाइन, एंड त्रीणी 3rd पोजिशन। शकुंतला जी पहले ही आप नीचे आ गए, कोई बात नहीं। यस, चत्वारि 4th पोजिशन, पंच 5th पोजिशन,
षड, सिक्स्थ पोजिशन, रिदम के साथ जाना. यस. सप्त, सेवेंथ पोजिशन. ओके, सो आशा जी आप मेट क्यों नहीं लेते? मेट इस्तेमाल नहीं करते आप? बिना मेट के मत करना. हाँ, ओके. अष्ट, एट्थ पोजिशन. होल्ड द पोस्चर फॉर अ वाइल. नाभि को पुल अप पुल इन करके कुछ समय के लिए होल्ड करे. होल्ड. So from here, fifth position, six. कौन सा पोजिशन नेक्स्ट था हमारा? हाँ, सॉरी, यस, अश्व संचालन में जाए. नाउ फ्रॉम हियर, पादहस्तासन. पादहस्तासन, स्वाति जी. पादहस्तासन, यस. श्वास भरे गहरा, हस्त उत्तानासन. मोना जी बहुत अच्छी है. बस इतना ध्यान रखें कि आप अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा और पीछे जा पाएंगे. यस. फाइनली नमस्कार स्थिति. ओके, सो मित्र रवि सूर्य भानु खग ओम. पूष्णे नमः. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड. श्रीनिवासन जी आज वीडियो क्यों ऑफ है? सप्त, अष्ट. इवन रजनी जी आज वीडियो क्यों ऑफ है? अष्ट. नव, दश, टेंथ पोजिशन. एकादश, द्वादश. ओके, फाइन. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सिक्स्थ पोजिशन ना षड. निधि जी, सिक्स्थ पोजिशन कैसा रहता है? नीचे 8 पार्ट जमीन पर. यस. सप्त, सेवेंथ पोजिशन. अंकिता आज करो ना, थोड़ा थोड़ा करके करो आज, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, यस. नेक्स्ट पोजिशन, अष्ट, नव, नाइन्थ पोजिशन. दश, एकादश,
द्वादश. ओके. ओम मरीचये नमः एकम. द्वे. त्रीणि. चत्वारि. यस शिल्पा जी नजर सामने. पंच. षड 6th position. 7th position. 8th position. 9th position. 10th position. 11th position. And finally 12th position. ओम आदित्याय नमः एकम. द्वे. त्रीणि. चत्वारि. पंच. एक एक धराशायी हो रहे हैं ना जैसे there are some who are still who have kept up the spirit, so I करते रहे. पंच. षड 6th position. सप्त. देखते हैं कौन एंड तक बचते हैं. तो ज्यादा भी ओवर एक्सर्शन ना करें, बट यस डोंट मिस एंड नोट डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ आल्सो. अष्ट. नव. दश. एकादश. द्वादश. ओम सवित्रे नमः एकम. द्वे. त्रीणि. चत्वारि. पंच. षड. सप्त. अष्ट. नव. दश. एकादश. द्वादश. हाँ अंकिता, then you may take rest also. सिर्फ sit nicely और प्राणायाम कर सकते हो, नहीं तो शवासन में बैठ के भी you can take rest. Fine. So ही म आ स अ भा. ओम अर्काय नमः एकम. एकम. द्वे. second position. त्रीणि. चत्वारि. पंच. षड. सप्त. अष्ट. नव. दश. एकादश. द्वादश. ओम भास्कराय नमः. हम 24वें मोड पे आ गए. ओके 24th पोजीशन, 24th सीक्वेंस. एकम. द्वे. सेकंड पोजीशन.
त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश. ओके 25वें नंबर पे जाते हैं. ओम मित्राय नमः एकम. यस, पानी पीना है तो पी लीजिए 2 मिनट, नहीं तो प्यास बुझा लीजिए सलाइवा से. द्वे सेकेंड मोड, सेकेंड पोजिशन, आर्च द स्पाइन. गर्दन दुख गई शकुंतला जी? यस, नहीं दुखनी चाहिए वैसे, क्योंकि हम काउंटर पोजेस भी कर रहे होते हैं. ऐसे करो, थोड़े से आराम से करो, थोड़ा सा आंखें बंद करके करना. ओके, त्रीणी, एक्सहेल डाउन एवरीबॉडी. चत्वारी, फोर्थ पोजिशन. आप बैठ के भी कर सकते हैं शकुंतला जी. ये सिट नाइसली एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. ये जो अभी बाकी के मेंबर्स है ना, ये बहुत हमारे धुरंधर रह चुके हैं. लास्ट बैच में 108 कर चुके हैं. सो लगते हैं साधारण है, बट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. चत्वारी. पंच, फिफ्थ पोजिशन. षड. और ऐसा भी नहीं है कि सर सभी बहुत यंग एज, मतलब बहुत कम उम्र के हैं. We have member of 69 who also completes 108. राजीव सर ने भी लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था, बट इस बार उनकी छोटी सी एक्सीडेंट के कारण इंजरी हुई है, नहीं तो वो इस बार भी अभी हमारे साथ साथ करते. बट आई रियली अप्रिशिएट यू सर कि आप फिर भी ऑनलाइन जुड़े हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे. प्राणायाम है ना, प्राणायाम करना. फाइन. सप्त भुजंगासना. अष्ट नव दश एकादश द्वादश. फाइन. मित्र रवि. ओम रवये नमः एकम. द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दश. बहुतों ने हथियार डाल दिए अभी, बट फिर भी कोई कोई अभी भी बनाए रखे है धैर्य. आई रियली अप्रिशिएट. नव, नाइन्थ पोजिशन. दश एकादश हस्तोत्तानासन. द्वादश. ओके फाइन. ओम सूर्याय नमः एकम. द्वे, ये 27वां चल रहा है अभी. त्रीणि चत्वारि पंच षड
seventh position. अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश. ओम भानवे नमः. एकम, द्वे, second position. त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश. ओम भानवे नमः. एकम, द्वे, त्रीणि, 28वां चल रहा है ये, चत्वारि. बाकी सभी प्राणायाम अनुलोम विलोम कर सकते हैं जो भी अभी बैठे हुए हैं. पंच, फिफ्थ पोजिशन. षड, सिक्स्थ पोजिशन. सेवेंथ पोजिशन. एट्थ पोजिशन. अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश. ओम खगाय नमः. 30th पोजिशन मोमेंट. ओके, 30वें नंबर पर आए हैं हम. द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश. ओके, सो फाइन. ओम उष्णे नमः. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 9th पोजिशन. दश, एकादश, द्वादश.
ओके, एक छोटा सा कंफर्मेशन मांगू, क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है और इज देयर सम लाइक ठीक है आवाज? ओके परफेक्ट फाइन. मरीचये नमः एकम द्वे त्रीणि. जिन्होंने हथियार डाल दिए प्राणायाम करने बैठ जाइए. चत्वारी. और आपके दोस्तों को देखिए कितनी ऊर्जा के साथ अभी भी बना के कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसी ही ऊर्जा अपने अंदर समाविष्ट करनी है. पंच. षड. सप्त. अष्ट. नव. दश. एकादश. द्वादश. ओम हिरण्यगर्भाय नमः एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच. फिफ्थ पोजीशन मुक्ता जी. 5वां पोजीशन. यस. षड. सिक्स्थ पोजीशन. सप्त. सेवेंथ पोजीशन. अष्ट. एट्थ पोजीशन. नव. नाइन्थ पोजीशन. दश. एकादश. द्वादश. ओके फाइन. ओके सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आपने जो हमने सीमित नंबर रखा था 30 से पार गए. नेक्स्ट वीक हम 60 से पार जाएंगे. आई होप इट इज नॉट 18th ऑन दैट डे. इट इज फाइन. ओके सो अभी सभी से अनुरोध है कि अपने आप पर नाज, be happy for yourself and lie down in a supine position. Whoever had done the practice of Surya Namaskar along with us for the complete practice, I really appreciate you कि आपने वो धैर्य बनाए रखा. और उन सभी के से भी मेरा बहुत ही प्रीति है जिन्होंने अपना 100% दिया. फिर अभी चाहे आप प्राणायाम भी क्यों ना कर रहे हो, बट आपने अपना 100% दिया. मुझे आशा है कि आप नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो इन सभी मेंबर्स के साथ साथ आप पूरा अपना 100% दे पाओगे और ज्यादा अच्छे से. तो सभी सुपाइन पोजीशन में कुछ समय सांस भरे दोस्तों एंड एक्सहेल नाइसली. फिर से एक बार श्वास भरे. सांस लेने के दौरान हमारे अंदर वह भाव रहे कि हम अपने शरीर में आध्यात्मिकता का विकास कर रहे. एक छोटा सा पॉइंट है. आशा जी आप मैट यूज नहीं कर रहे हो क्या? कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? अभी कर लीजिए. मैट लेके आइए. मैट नहीं है तो फिर समथिंग शुड बी देयर. डोंट डू इट बेयर ऑन द फ्लोर. ये तो हमारे योग के ग्रंथ में भी मेंशन आता है कि बेर जमीन पर नहीं करते. श्वास भरे.
श्वास भरे गहरा। और पूरा प्रश्वास। एक छोटा सा मुझे श्लोक याद आया रिगार्डिंग द हमारी वो सरफेस कैसा हो, तो आप भले आंखें बंद करें बट उसको अनुभव करना। जैसे अपनी गीता में ना एक जिक्र आता है, 6ठे अध्याय में इसका जिक्र है, आत्म संयम योग विभाग छठे अध्याय में जिक्र आता है कि हमारा पोजीशन कैसा हो, या फिर मेडिटेशन में तो वो कहते हैं समलोष्टाश्म कांचनः नात्युच्चितम नाति नीचम नात्युच्चितम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। मतलब जो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मृग की छाला, उस टाइम पे थोड़ी प्लास्टिक होता था, तो मृग की छाला, हिरण की छाला पर आप बैठ के योगाभ्यास करो, ऐसा जिक्र आता है। या फिर जो भी भूसी होती है ना धान की, उस पर उसका एक कवरिंग बना के आप उस पे बैठ सकते हैं। तो कभी भी बेर जमीन पर नहीं, बट यू कैन यूज समथिंग और क्या। Continue breathing for a while. Continue. And now let us have a deep awareness at the heart center. अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। Breathe nicely. Breathe out completely. Breathe in. अपने बाएं हथेली को इस हार्ट सेंटर पर रखें। Place it at your heart center. Breathe nicely. Breathe out. अनुभव करें हर श्वास के साथ आप अपने शरीर का हर वो थकान बिल्कुल गला रहे। सूर्य नमस्कार में शायद आपने महसूस किया होगा पसीना बहुत ही जम के आया था। वो पसीना हमारे अंदर का टॉक्सिन्स बाहर निकाल के ले गया और साथ ही साथ ताजगी भी दे गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट वंस अ वीक बिल्कुल पसीने से लबालब होने वाला अभ्यास। फाइन। श्वास गहरा भरे। पूरा प्रश्वास। फिर से गहरा सांस भरे। गहरा प्रश्वास। ब्रीद इन। Breathe out. And let us now finally turn to the left side and sit comfortably. बाईं करवट ले और अच्छे से बैठ जाइएगा। आंखें बंद। नमस्कार स्थिति। गहरा सांस भरे और एक सुंदर सा देश भक्ति भजन गाते। ओके, आपने सुना है, यह बहुत ही सुंदर सा भजन है, शायद आप में से बहुत जनों ने सुना होगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। How many of you all have heard it? Yes, सुना है? बिल्कुल सुना है, right? So अभी आपने क्या करना है, when you have to chant, अगर आपको आता है तो आप गा लीजिएगा और गाने के साथ साथ अपने दोनों हाथों को भी ताली वादन में ले जाए। ओके, और ऑल्सो आप चाहे तो अपने आप को थोड़ा सा नॉड कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी मूव विथ जॉय इट एक्चुअली सिक्रीट्स आवर इंटरनल एंडोर्फिन्स इन आवर बॉडी, जिसका कोरिलेशन हमारे आर्ट एंड कल्चर प्रैक्टिसेस में है। जैसे बहुत ही सुंदर कोरिलेशन है कि जो हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते हुए रहते हैं वो हमेशा अपने अंदर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का अनुभव करते हैं।
Why? Because सही अमीरी हमारे शरीर की तंदुरुस्ती है ना। और वह तंदुरुस्ती कैसे आएगी? जब हम अपने अंदर डोज का सिक्रीशन करें, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन, DOSE, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। या तो करते हैं वजन सभी, दोनों हाथों को रेडी करें, थोड़ा सा वार्म करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जय करते प्रभु नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि करते प्रभु नाम की माला। ये जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। तो हमारे भारत के ऊपर जब हम गर्व रखते हैं, when we are proud of being an Indian, we are internally developing that valor, that courage to be a part of our glorious Indian future, which is rising now. हमारा ये भाग्य है, it is our good fortune that we are blessed to have been living in such a beautiful country which is endowed with culture in its own beauty. जैसे योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, जिसमें संस्कृत पठन पाठन गुरुकुलीय पद्धति इसी भारत देश से जन्मी है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका आदर करें, तिरस्कार न करें, अपितु उसको बढ़ावा देने के लिए अपनी पूर्ण भूमिका अदा करें। तो अपनी भारतीय परंपराओं से जन्मी हर उस पद्धति के ऊपर अपना नाज होना चाहिए। We have to be proud of being coming from our ancestors, जैसे गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, धन्वंतरी जी, सुश्रुत, कणाद, ये सभी हमारे पूर्वज हैं। और इन सभी पूर्वजों ने दी हुई यह धरोहर, योग, आयुर्वेद, संस्कृत, यज्ञ पद्धति, यह सभी हमारे लिए है, हमारे स्वास्थ्य का वर्धन करने के लिए है। इसीलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसका हमेशा मान
बनाए रखे और न ही उसका तिरस्कार करें। इसलिए being an Indian, it is our duty to make sure that even our friends and family members become aware of this beauty within India. तो जब हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हमारा ये दायित्व है कि हम स्वदेशी को बढ़ावा दें और स्वदेश से जन्मी हुई हर उस पद्धति पर विश्वास रखें। तो आइए सभी संकल्प लेते हैं। इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये राष्ट्र के लिए है। हम अगर योगाभ्यास भी कर रहे हैं तो यह राष्ट्र के लिए है। क्यों? बिकॉज जब हम स्वस्थ रहेंगे, एलोपैथी या फिर बाहरी विदेशी तंत्र पर कम से कम हमारा डिपेंडेंस रहेगा, जिसके कारण जो आयात है वो कम से कम हो और हमारे सेल्फ स्वाभिमान का वर्धन हो। इसलिए योग हम करते हैं, क्योंकि योग से मनसा वाचा कर्मणा तीनों का समन्वय होता है और यह हमारा दायित्व है कि हम हमेशा हर दिन ऊर्जा से परिपूर्ण हो। जैसे कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्नों का भारत बने। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह रास्ता भले कांटों का हो, बट बिल्कुल कवियों ने भी मेंशन किया है कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। फिर वो चाहे आप किसी भी डोमेन में क्यों ना समझे, बट तात्पर्य यही है कि अगर हमारे अंदर कोई रोग भी अगर पनप रहा हो, अगर कोई कुरीतियां, दुर्विचार, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर भी अगर डेवलप हो रहा हो, उसको हमें पूर्णतः निस्तनाबूद करने का बीड़ा उठाना चाहिए। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। हम ही हमारे सबसे प्रिय मित्र होते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम अपने स्वजनों का भी ख्याल रख पाएंगे। तो आइए संकल्प लेते हैं कि योग को अपना स्वभाव बनाएंगे, योग को अपने जीवन का एक अविभाज्य घटक बनाएंगे। और योग न केवल सुबह करने की क्रिया है, अपितु पूरे दिन भर योगमय बनने की क्रिया है। इसलिए आप जहां जाएं, योग का अवतरण हो इस भाव के साथ, हर कार्य योगमय हो इस भावना के साथ कार्यान्वित रहे। जैसे योगी के लक्षण उसके हालचाल स्वभाव से दिखते हैं, वैसे ही हमारा हर वो कार्य योगमय हो, यह संकल्प हमारे अंदर धारण करे। आपके मित्र, स्वजनों को, सगे संबंधियों को योग के बारे में, योग की दीक्षा दें या फिर योग के महत्व के बारे में समझाएं, ताकि वो समय रहते योग करे, स्वस्थ रहे, समाज के लिए उपयोगी बन पाए, निरोगी रह पाए, रोगी नहीं अपितु उपयोगी बन पाए। With that said, I would request everybody to rub both palms together. Placing them over the eyes, we may slowly open. Yes, बहुत बड़ा संकल्प दे दिया मैंने आप सभी को। बड़ा आशा है आप पूरा करोगे। Yes, thank you. Wish you all a beautiful day ahead. Namaste. Lot of blessing from us. Lot of blessings. Neha ma'am, it brings tears to Thank the you, eyes. Neha ji. So beautiful. Thank you, Neha ji. God bless you. Have a nice Thank you, Neha ma'am. Thank you, Neha ji. Thank you. Yes, thank you. Bye bye. Thank you, Neha ma'am. Yes, thank you. Thank you. Yeah. नेहा मैम, मुझे एक डाउट है। पूछिए। मैम, बच्चों में मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जैसे आप मुद्रा बोलते हैं, तो उसमें वो कौन सी मुद्रा में कुछ याद ज्यादा रखना है, कुछ
तो वो कैसे जब करे? पढ़ाई करे ना, जब पढ़ाई करे उस दौरान एक हाथ में ऐसे ऐसे मुद्रा रखे, ध्यान मुद्रा। Okay. और वो जो भी पढ़ाई करे उस दौरान, इवन परीक्षा में भी बैठे उस दौरान भी एक हाथ में मुद्रा, दूसरे हाथ में कलम। इवन जब, क्योंकि इट हैज इट्स ओन रेलेवेंस, जब हम कहते हैं मुद्रा लगानी है तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल भाव आता है कि अच्छा आई एम डूइंग इट फॉर कंसंट्रेशन, सो अपने अंदर वो ऑटो सजेशन बिल्डअप होता है दैट आई हैव टू कंसंट्रेट। फिर वो मुद्रा अपना काम करेगा बट हम भी अपना काम करेंगे, मतलब पढ़ाई के दौरान। तो यस, राइट। और मैम मेमोरी के लिए कुछ ऐसा कुछ आसन या भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य नमस्कार, इनसे बच्चा बहुत ही कुशाग्र बनेगा। थैंक यू सो मच मैम। और मैम कोई फैट, टमी फैट के लिए कोई मैम आसन का या सीक्वेंस आप आपने बता आज सकते जो हैं? किया था ना वो ही करो। अच्छा, सूर्य मैं देख नमस्कार। रही थी आप बैठे हो या नहीं, बट आप कर रहे थे, सो इट्स गुड। अरे मैम बहुत तकलीफ हो रही थी आज, तो आई हालत वाज खराब हो गई। वाचिंग, अगर बैठे होते तो मैं बिल्कुल कहती कि पूर्वी जी आपको याद है आपने एक बार मुझे पूछा था, यही है वो, यही करना है। और Exactly. You are a blessing to us, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। Have a nice day. Thank you so Have a much, nice ma'am. Have a nice day. बाय बाय एवरीबॉडी। Bye-bye.